آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے نہایت ایمان افروز اور مفید ثابت ہوگی، کیونکہ اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید کا دن کس طرح سے گزارتے تھے۔ ہم آپ کو عید کے مبارک دن سے متعلق چند خاص واقعات بھی سنائیں گے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ اسلام میں عید کی ابتدا کب ہوئی۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے۔ ناظرین گرامی، عید الفطر ہر سال یکم شوال کو منائی جاتی ہے، جو رمضان المبارک میں کی گئی عبادات، صبر و ریاضت کا انعام ہے۔ عید کا مطلب خوشی اور فطر کا مطلب کھولنے کے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ تلقین فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے خوشی کے مواقع پر جائز اور حلال طریقے سے اظہار کو پسند فرمایا ہے، مگر اسلام ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ کوئی بھی خوشی حدود الہی سے تجاوز کرتے ہوئے منائی جائے۔ اسی لیے چاند رات اور عید کے دن عبادات کی اہمیت کو مزید بڑھا دیا گیا ہے۔ چاند رات کو حدیث میں انعام کی رات کہا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس نے دونوں عیدوں کی چاند رات کو عبادت میں گزاری، اللہ رب العزت اس کے دل کو اس دن زندہ رکھے گا جب سب کے دل مردہ ہو جائیں گے۔ ناظرین، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز عید کے لیے تشریف لے جا رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ سب بچے خوشی سے کھیل رہے ہیں، مگر ایک بچہ اداس اور غمزدہ ایک طرف بیٹھا رو رہا ہے۔ اس کے کپڑے پھٹے پرانے تھے اور اس کے چہرے پر غم کے آثار نمایاں تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بچے کے قریب گئے اور نرمی سے فرمایا کہ بیٹا، کیا بات ہے؟ تم کیوں رو رہے ہو اور دوسرے بچوں کے ساتھ کیوں نہیں کھیل رہے؟ بچے کو شاید معلوم نہ تھا کہ اس سے بات کرنے والے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، یا شاید وہ اپنے غم میں اتنا ڈوبا ہوا تھا کہ پہچان نہ سکا۔ اس نے روتے ہوئے جواب دیا کہ مجھے میرے حال پر چھوڑ دیجئے، میرا باپ فی الغزوہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شہید ہو گیا، میری ماں نے دوسرا نکاح کر لیا، میرے ستیلے باپ نے میرا مال چھین لیا اور مجھے گھر سے نکال دیا، میرے پاس نہ کھانے کو کچھ ہے اور نہ پہننے کے لیے کپڑے، نہ سر پر کوئی سایہ بان ہے۔ جب میں نے ان بچوں کو خوشیاں مناتے ہوئے دیکھا ہے اور نئے کپڑے پہنتے ہوئے دیکھا ہے تو میرا غم تازہ ہو گیا ہے اور میں رونے لگا ہوں۔ یہ سن کر رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل بھر آیا۔ آپ نے محبت سے بچے کا ہاتھ تھاما اور شفقت بھری آواز میں فرمایا کہ بیٹا، کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ میں تمہارا باپ ہوں، عائشہ تمہاری ماں ہوں، فاطمہ تمہاری بہن، علی تمہارا چچا اور حسن و حسین تمہارے بھائی ہوں؟ بچہ یہ سن کر خوشی سے جھوم اٹھا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں کیسے اس پر راضی نہ ہوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچے کو اپنے گھر لے آئے، اسے نئے کپڑے پہنائے، نہلایا، کھانا کھلایا اور محبت و شفقت سے نوازا۔ جب وہ باہر نکلا تو اس کے چہرے پر خوشی کی روشنی تھی۔ دوسرے بچوں نے حیران ہو کر پوچھا، ابھی تو تم رو رہے تھے لیکن اب اتنے خوش کیوں ہو؟ اس نے مسکرا کر جواب دیا، میں بھوکا تھا، اللہ نے میرے کھانے کا انتظام کر دیا، میں ننگا تھا، اللہ نے میرے لیے کپڑوں کا بندوبست کر دیا، اور سب سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے باپ، حضرت عائشہ صدیقی رضی اللہ تعالی عنہا میری ماں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا میری بہن، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ میرے چچا اور حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ میرے بھائی بن گئے ہیں۔ یہ سن کر دوسرے بچے حسرت سے کہنے لگے، کاش ہم بھی یتیم ہوتے۔ یہ بچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت میں رہا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت اور محبت میں پرورش پاتا رہا، مگر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو وہ زار و قطار رونے لگا اور کہنے لگا، آج میں دوبارہ یتیم ہو گیا اور غریب ہو گیا۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے اپنے سایہ عاطفت میں لے لیا اور اس کی کفالت کی ذمہ داری سنبھالی۔ ناظرین گرامی،
ये वाक़या हमें ईद की असल रूह सिखाता है कि ईद सिर्फ अपनी खुशियों का इजहार का नाम नहीं, बल्कि दूसरों की खुशियों का ख्याल रखने का भी मौका है। हमें चाहिए कि यतीमों, मिस्कीनों और ज़रूरतमंदों का ख़ास ख्याल रखें और अपनी ईद की खुशियों में उन्हें भी शरीक करें, ताकि हकीकी ईद वो हो जिस दिन किसी का कोई गम ना हो। नाज़रीन, ईद उल फित्र का दिन सिर्फ खुशियों और जश्न का नहीं, बल्कि यौम इख्तिसाद का दिन भी है। क्या आज हमारे दरमियान ऐसे लोग मौजूद हैं जो गलियों और सड़कों पर फटे पुराने कपड़े पहने महरूमी के शिकार बच्चों को नए लिबास पहनाते हों, जो नादार और बेसहारा बच्चों की आंसू पूंछते हैं, जो अपनी ईद की तैयारियों में इन गरीबों और ज़रूरतमंदों को भी याद रखते हों जो सारा साल नए कपड़ों के लिए तरसते हैं। नाजरीन, ईद की खुशियां ज़रूर मनाएं, तैयारियों में भी कोई कमी न छोड़ें, लेकिन याद रखें कि जहां इसराफ और फजूर खर्ची से अल्लाह ने मना किया है, वहीं नमूद व नुमाइश को भी अल्लाह ताला ने नापसंदीदा अमल करार दिया है। इसकी वजह यह है कि ये मुआशरे में एहसास महरूमी को जन्म देती है और दिलों में फासले पैदा करती है और मोहताजों के दिलों को जख्मी करती है। नाज़रीन गिरामी, हम आपको यहाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक और दिलनशीन वाक़या सुनाते हैं, जो हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा के बचपन की ईद के मुताल्लिक़ है। ईद करीब थी और दोनों शहजादों ने अपनी वालिदा सईदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाइश की कि मादरी गिरामी, अत्फ़ाल मदीना ईद के दिन नए खूबसूरत लिबास पहनेंगे और हमारे पास नए कपड़े नहीं, हम ईद कैसे मनाएंगे। माँ ने मोहब्बत भरी तसल्ली दी कि बच्चों घबराओ मत, तुम्हारे कपड़े दर्जी लाएगा। ईद की रात आई और शहजादों ने दोबारा कपड़ों की फरमाइश की। माँ ने फिर नरमी से वही जवाब दिया और बच्चों को खामोश करवा दिया। अभी सुबह न हुई थी कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। सईदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की खादिमा दरवाजे पर गईं। बाहर एक अजनबी शख्स खड़ा था जिसने एक बक्सा खोला जिसमें बच्चों की तमाम ज़रूरी अशिया और लिबास मौजूद थे। माँ का दिल बाग बाग हो गया। वो समझ गईं कि ये कपड़े जन्नत से आए हैं, मगर कुछ न कहा। मोहब्बत से बच्चों को जगाया और उन्हें नए कपड़े पहनाए। सुबह हुई तो हज़रत इमाम हसन व हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने कपड़ों के रंग की तरफ तवज्जो की तो मासूमियत से बोले कि मादर गिरामी, ये तो सफ़ेद कपड़े हैं, मगर अत्फ़ाल मदीना रंगीन कपड़े पहनने होंगे, हमें भी रंगीन कपड़े चाहिए। ये बात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और फरमाया कि घबराओ मत, तुम्हारे कपड़े अभी रंगीन हो जाएंगे। इतने में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए। उन्होंने पानी डाला और अल्लाह ताला के हुक्म से कपड़े सफ़ेद से रंगीन हो गए। हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सब्ज़ जूड़ा पहना और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सुर्ख जूड़ा ज़ेब-ए-तन किया। माँ ने गले लगाया, बाप ने बोसा दिया और नाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पुश्त पर सवार करके मदीना की गलियों में घुमाया। नाजरीन, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्ह और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ईमान अफरोज़ मुकालमा मुलाहज़ा फरमाइए। रास्ते में हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यह मंजर देखा तो हसरत भरे लहजे में कहने लगे कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी पुश्त पर कितनी खूबसूरत सवारी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और इरशाद फरमाया कि ज़रा ये भी तो देखो कि सवार कितने अच्छे हैं। नाजरीन, ईद सिर्फ उनकी नहीं जो खुशियां मनाएं, खूबसूरत कपड़े पहने, कीमती खाने खाएं और घरों को सजाते हैं, बल्कि हकीकी ईद उनकी है जो गुनाहों से बचें, जिन्होंने अपने आमाल में इखलास पैदा किया, जिन्होंने सच्चे दिल से तौबा की और नेक बनने का अज़्म किया, जिन्होंने तक़वा और परहेजगारी का रास्ता इख्तियार किया और जो दोज़ख के पुल से बासानी गुजर गए। इस कसौटी पर अपने आमाल को परखें और हकीकी खुशियों भरी ईद मनाएं। नाजरीन, इस्लाम में ईद की इब्तिदा कब हुई, इस बारे में भी बात करेंगे। साल में कुछ दिन ज़रूर ऐसे होते हैं जिन्हें जश्न, त्यौहार और ईद के तौर पर मनाया जाता है। ये तमाम अक़वाम और मज़ाहिब में एक मुश्तरका रिवायत है। अलबत्ता हर कौम और हर मज़हब के लोग अपने अक़ायद,
रिवायात और सकाफती अक़दार के मुताबिक अपने त्यौहार मनाते हैं। ये हकीकत वाज़ेह है कि ईद का तसव्वुर इंसानी फितरत का तकाज़ा है और ये इंसानियत की एक मुश्तरका कदर है। लेकिन मुसलमानों की ईद दूसरों से बिल्कुल मुनफरिद है। इस्लाम में ईद महज खुशी का दिन नहीं, बल्कि रूह की लताफत, क़ल्ब के तज़किया, बदन और लिबास की तहारत, जुज़्बात की सफाई, खुशी व खुजू और इस्लामी इत्तेहाद व उख़्वत का खूबसूरत इम्तिजाज है। इस दिन मुसलमान अल्लाह की बारगाह में सजदा बंदगी और नजराना शुक्र बजा लाते हैं। कुरान मजीद फुरक़ान हमीद की सूरतुल माइदा में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की एक दुआ के ज़रिए ईद का जिक्र मिलता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदक़े फ़तर फ़र्ज़ किया ताकि रोज़े की कोताहियों का इज़ाला हो जाए और गरीब लोग भी ईद की खुशियों में शामिल हो सकें। सदक़े फ़ितर हर मुसलमान पर वाजिब है और इसे नमाज ईद से पहले अदा करना ज़रूरी है। नाज़रीन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद के दिन लोगों से मोहब्बत से मिलते, एक दूसरे को मुबारकबाद देते और ईद की खुशियों को बांटते थे। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन भी एक दूसरे से मिलते और कहते, अल्लाह हमारी और तुम्हारी नेकियां कबूल फरमाए। मुस्कुराते चेहरे के साथ लोगों से मिलना, रिश्तेदारों, यतीमों और गरीबों को खुशियों में शामिल करना, दोस्तों और घरवालों के साथ वक्त गुजारना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ा-ए-कार में शामिल था। नाज़रीन, ईद का दिन खुशी का दिन है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जायज़ तफरीह की इजाज़त दी है। हदीस शरीफ में आता है कि ईद के दिन हबशी लोग मस्जिद नबवी में नेज़ाबाजी कर रहे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाया कि तुम भी देखना चाहती हो? हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, जी हाँ। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अपने पीछे खड़ा कर लिया और मैं उनका खेल देखती रही। बच्चों को ईद की खुशी देना, जायज़ तफरीह और खेल कूद की इजाज़त। ईद को मसर्रत और खुशी के दिन के तौर पर मनाना भी सुन्नत मुबारका है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईद सादगी, इबादत, खुशी और दूसरों की मदद में गुजरती थी। इसलिए हमें भी चाहिए कि हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, ईद की नमाज अदा करें, सदका फ़ितर और ज़कात के ज़रिए गरीबों की मदद करें, रिश्तेदारों, दोस्तों और बच्चों के साथ खुशियां बांटें, जायज़ तफरीह करें और गुनाहों से बचें। नाज़रीन, ईद के दिन जब मुसलमान ईदगाह की तरफ निकलते हैं तो अल्लाह ताला अपने फरिश्तों से पूछता है कि ऐ मेरे फरिश्तों, इस मजदूर का बदला क्या है जो अपनी मेहनत को मुकम्मल कर ले। फरिश्ते अर्ज करते हैं, ऐ हमारे माबूद, इसका बदला ये है कि इसे पूरा पूरा अजर दिया जाए। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि फरिश्तों गवाह रहो, मैंने अपने रोज़ादार बंदों को अपनी खुशनूदी से नवाज दिया और उनकी मग़फ़िरत फरमा दी है। फिर अल्लाह ताला अपने बंदों से फरमाता है कि ऐ मेरे बंदो, जो चाहो मुझसे मांगो, मुझे मेरी इज्जत और जलाल की कसम, आज तुम जो अपनी आखिरत के लिए मांगोगे मैं अता करूंगा और दुनिया के बारे में जो मांगोगे उसमें तुम्हारी भलाई को मद्नज़र रखूंगा। मैं तुम्हें कभी रुसवा नहीं करूंगा। जाओ, तुम सब बख्शे बख्शाए वापस जाओ। ये सुनकर फरिश्ते झूम उठते हैं और अल्लाह ताला की रहमत और मग़फ़िरत पर खुशियां मनाते हैं। नाज़रीन गिरामी, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ेकार पर अपनी ज़िंदगी गुजारने की हिम्मत और तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन बिजाहे नबीयुल अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला किताबुल अरब में इरशाद फरमाता है कि ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि या अल्लाह, ए हमारे परवरदिगार, हम पर आसमान से खाने का एक ख्वान यानी दस्तरख्वान उतार दे, ताकि उसके उतरने का दिन हमारे अगलों और पिछलों के लिए बितौर ईद और यादगार हो और तेरी तरफ से एक निशानी हो और हमें रिस्क अता फरमा।
اور तू सबसे बेहतरीन रिस्क अता फरमाने वाला है। अगली आयत में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, मैं ये ख्वान तुम पर उतारता हूं, मगर इसके बाद अगर तुम में से किसी ने कुफ्र किया तो मैं उसे ऐसा अजाब दूंगा जो सारे जहानों में से किसी को न दिया गया हो। नाजरीन, कुरान मजीद फुरकान हमीद ने यह जिक्र नहीं किया कि आया हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ के नतीजे में वो ख्वान उतरा या नहीं, लेकिन तफासिर में दोनों तरह की रिवायात मौजूद हैं। यहाँ ये बात वाज़ेह होती है कि किसी कौम के लिए अल्लाह ताला की खुसूसी नेमत के नुज़ूल का दिन ईद कहलाया जा सकता है। नाजरीन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे इन दोनों त्योहारों के बदले में तुम्हें बेहतर इस्लामी ईदें अता फरमाई हैं। इस्लाम में ईद का बाकायदा आगाज़ हिजरत के बाद मदीना मुनव्वरा में हुआ। मदीना पहुंचने पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि अहले मदीना दो त्योहार मनाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया, ये कौन से दिन हैं? अहले मदीना ने कहा, ये वो दिन हैं जिनमें हम खुशियां मनाते हैं और खेलते हैं। तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने तुम्हें इनके बदले में दो बेहतर दिन अता फरमाए हैं, ईद उल फित्र और ईद उल अदहिया। यूं इस्लामी मुआशरत, तमद्दुन और इज्तिमाई जिंदगी के आगाज के साथ ही ईदैन का सिलसिला भी शुरू हो गया। नाजरीन, इस्लाम में ईद का तसव्वुर सिर्फ खुशी मनाने का नहीं, बल्कि अल्लाह की नेमतों पर शुक्र बजा लाने का भी है। ईद उल फित्र रमजानुल मुबारक के रोज़ों, इबादतों और रियाजतों के बाद अल्लाह ताला की रिज़ा के हुसूल की खुशी में मनाई जाती है। ईद उल अदहिया कुर्बानी की सुन्नत की पैरवी करते हुए ईसार, कुर्बानी और इताते इलाही का अमली मुजाहिरा है। ये सिर्फ कपड़ों, खानों और तफरीह का नाम नहीं, बल्कि ये एक मौका है कि हम अल्लाह के एहसानात का शुक्र अदा करें, गुनाहों से तौबा करें और दूसरों की खुशियों का भी ख्याल रखें। बस हकीकी ईद वही है जिसमें हम अल्लाह की रज़ा के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का अज़्म करें। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि अहले मदीना 2 दिन बतौर त्यौहार मनाया करते थे, जिनमें वो खेल तमाशे किया करते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि ये 2 दिन जो तुम मनाते हो, उनकी हकीकत और हैसियत क्या है, यानी इन त्यौहारों की असल क्या है? उन्होंने अर्ज़ किया, हम अहले जहलियत में यानी इस्लाम से पहले ये त्यौहार इसी तरह मनाते थे। तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने तुम्हारे इन दोनों त्योहारों के बदले में तुम्हारे लिए इनसे बेहतर 2 दिन मुकर्रर फरमाए हैं, यौम ईद उल फित्र और यौम ईद उल अज़हिया। नाजरीन, चूंकि इस्लाम दीन फितरत है, इसीलिए इसने जहां अपने मानने वालों को लादीनी नजरियात से महफूज रखा, वहीं इनके लिए सही फितरी तकाज़ों की पूरी तकमील भी की। ईद मनाना इंसानी फितरत का तकाजा था। चुनाचे मुसलमानों को एक के बजाय 2 ईदों की नेमत अता फरमाई गई। पहली अंबिया की उम्मतें भी किसी न किसी शक्ल में ईद मनाया करती थीं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की उम्मत उस दिन ईद मनाती थी जिस दिन उनकी तौबा कबूल हुई। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्मत उस दिन ईद मनाती थी जिस दिन वो नमरूद की आग से निजात पाए। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम उस दिन ईद मनाती थी जब वो मछली के पेट से बाहर आए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत उस दिन ईद मनाती थी जब आसमान से मायदा यानी दस्तरखान नाजिल हुआ। अहले अरब भी मुख्तलिफ त्यौहार मनाया करते थे, जिनमें शराब नूशी, जुआ, शेर व शायरी, रक़्स व सुरूर की महफिलें मुनक्किद की जाती थीं। इस्लाम ने इन तमाम गलत रिवायात को ख़त्म करके ईद को पाकीज़ा साँचे में ढाल दिया। नाजरीन, रमज़ानुल मुबारक के बाद इनाम व शुक्र का ये दिन है। रमज़ानुल मुबारक एक मुबारक महीना है जो अल्लाह की खुसूसी रहमतों, मग़फ़िरतों और बरकतों से भरा हुआ है। यही वो महीना है जिसमें कुरान मजीद फुरक़ान हमीद नाजिल हुई, रोज़ों की फ़र्ज़ियत का हुक्म आया, तरावीह की नमाज का आगाज़ हुआ, ग़ज़वा बद्र का अज़ीम मारका पेश आया और लैलतुल क़द्र की अज़ीम रात भी इसी रमज़ानुल मुबारक में रखी गई थी। यही वो महीना है जिसमें मुसलमान इबादत में मशगूल होकर
अल्लाह से लो लगाते हैं। जब बंदा अपने नफ्स, ख्वाहिशात और दुनियावी लज्जतों को अल्लाह की रज़ा पर कुर्बान कर देता है तो अल्लाह की रहमत जोश में आती है और रहमत बारी ताला ये तकाजा करती है कि बंदे को इनाम व इकराम का दिन दिया जाए। लिहाजा रमज़ान के इख्तिताम पर यकुम शव्वाल को ईद उल फितर का दिन तुलू होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान की आखिरी रात को यौमुल जायज़ा यानी इनाम का दिन करार दिया है और ईद उल फितर का दिन अल्लाह का शुक्र अदा करने का दिन है। ईद उल अज़हा जो 10 ज़ुल्हिज्जा को मनाई जाती है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की यादगार है। ये दिन हमें कुर्बानी, ईसार और अल्लाह की रज़ा के लिए जान तक देने की अजीम कुर्बानी की याद दिलाता है। नाज़रीन, इस्लामी ईदें दूसरे त्योहारों से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। ईसाइयों के त्योहारों में रक्स व सुरूर होता है। यहूदियों के त्योहार निराली रसूमात पर मबनी होते हैं। दीगर मज़ाहिब में ईदों को महज तफरीह और जश्न के तौर पर मनाया जाता है, लेकिन इस्लामी ईदें अल्लाह की रज़ा, तक़वा और इबादत से जुड़ी होती हैं। नाज़रीन, हिजरत के दूसरे साल जब मुसलमानों पर रोज़े फ़र्ज हुए तो इसी साल पहली बार ईद उल फितर मनाई गई। ये मुसलमानों की तारीख में पहली इज्तिमाई खुशी थी। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदगाह की तरफ जाते, 2 रकत नमाज पढ़ते और खुतबा इरशाद फरमाते थे। फिर औरतों की सफ़ों में जाकर उन्हें वाज़ व नसीहत करते और सदक़े की तरगीब दिलाते थे। हज़रत अली करमुल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद की नमाज के लिए पैदल तशरीफ़ ले जाते थे। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिन रास्ता बदल कर वापस आते थे। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज ईद के लिए निकलते तो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके आगे आगे चलते। उनके हाथ में नेज़ा होता जो नज्जाशी ने तोहफा दिया था। नाज़रीन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का हर लम्हा हमारे लिए एक नमूना यानी उसवे हसना है और ईद जैसे मौक़े जिनको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह मनाते थे, आइए जानते हैं। नाज़रीन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईद बहुत सादा, पुरमसरत और इस्लामी रूह से मामूर होती थी। आपकी ईद में इबादत, शुक्रगुजारी, समाजी फलाह व बहबूद और खुशी बांटने के तमाम पहलू नुमाया होते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद की रात को इबादत में गुजारते। हदीस शरीफ में है कि जिस शख्स ने ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा की रात को इबादत में जिंदा रखा, उसका दिल उस दिन न मरेगा जब सबके दिल मर जाएंगे। ये रात अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने और दुआओं की कबूलियत की रात होती है। ईद के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज मस्जिद में अदा फरमाते और फिर ईद की तैयारी करते। ईद की तैयारी में गुस्ल करना, मिसवाक करना, खुशबू लगाना, अच्छे और साफ सुथरे कपड़े पहनना सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद के दिन नमाज के लिए अच्छे कपड़े ज़ेब-ए-तन फरमाते थे। नाज़रीन, ईद उल फित्र के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से पहले खजूरें खाते थे। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल फित्र के दिन ताक अदद में खजूरें खाते थे, जबकि ईद उल अज़हा के दिन आप नमाज से पहले कुछ न खाते थे, बल्कि कुर्बानी के गोश्त से खाने को तरजीह देते थे। नाज़रीन, हदीस शरीफ में है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद की नमाज खुले मैदान में अदा फरमाते थे, सिवाय बारिश के या किसी और उज़्र। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में नहीं बल्कि ईदगाह में जाकर नमाज पढ़ते थे। नमाज के लिए पैदल जाते, रास्ते में तकबीरात बुलंद करते, एक रास्ते से जाते और दूसरे रास्ते से वापस आते थे। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं
कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद के दिन रास्ता बदल कर वापस आते थे। नाजरीन, ये अमल इस बात की निशानदही है कि हर रास्ता गवाह बने कि हमने ईद की नमाज अदा की और अल्लाह ताला का जिक्र किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज ईद बगैर अजान और इकामत के अदा फरमाते थे। ईद की नमाज की 2 रकतें होती हैं। नमाज के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा देते थे। खुतबा में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते, नसीहत फरमाते और सदक़े की तरगीब देते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद उल फित्र के दिन पहले नमाज अदा की, फिर खुतबा दिया, फिर औरतों की तरफ जाकर उन्हें वाज और नसीहत की और सदक़े की तरगीब दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा के बाद औरतों की तरफ खुसूसी तौर पर तशरीफ ले जाते और उन्हें वाज और नसीहत करते और सदका देने की तरगीब देते थे। ईद की खुशियों में नाजरीन मसाकीन को शामिल करना बहुत जरूरी है, इसीलिए सदका-ए-फित्र फर्ज किया गया है।